Good afternoon. Up till now, we have seen heuristic technique and blind search technique. Blind search techniques means breadth first search, that is BFS, and depth first search, that is DFS. Another two methods are there, but that two methods are not in our syllabus. Only two methods are there for uninformed search. Uninformed search means blind search. And we have seen informed search technique. In that, we have seen heuristic technique. In that heuristic technique, we have seen one traveling salesman problem. Therefore, now next, that is 2 to 3 methods are remain. Next is hill climbing. Hill climbing algorithm is a local search algorithm which continuously moves in the direction of increasing elevation or value to find the peak of the mountain or best solution to the problem. Hill climbing, name itself indicates we are climbing the hill. Therefore, hill climbing means what? We have to move continuously by increasing the elevation or value to find the peak of the mountain or best solution to the problem. It terminates when it reaches a peak value where no neighbor has a higher value. Hill climbing algorithm is a technique which is used for optimizing the mathematical problems. One of the widely discussed examples of hill climbing algorithm is traveling sales problem, in which we need to minimize the distance traveled by the salesman. It is also called greedy local search, as it only looks to its good immediate neighbor state and not beyond that. A node of hill climbing algorithm has two components, which are state and value. Hill climbing is mostly used when a good heuristic is available. In this algorithm, we don't need to maintain and handle the search tree or graph, as it only keeps a single current state. Now, there are some definitions in hill climbing. Local maximum. Local maximum is a state which is better than its neighbor states, but there is also another state which is higher than it. Global maximum. Global maximum is the best possible state of state space landscape. It has the highest value of objective function. Current state. It is a state in a landscape diagram where an agent is currently present. Flat local maximum. It is a flat space in the landscape where all the neighbor states of current states have the same value. Shoulder. It is a plateau region which has a fill edge. Therefore, this is nothing but local maximum. Afterwards, we will see the videos. Local maximum. A local maximum is a peak in the landscape which is better than each of its neighboring states. But there is another state also present which is higher than the local maximum. Therefore, this is the local maximum. Problems with hill climbing. See here, another state is also present which is higher than the local maximum. Then plateau or flat maximum. Plateau means in Marathi it is called as पठार. जी प्लेन जागा असते त्याला प्लॅटू म्हणतात. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, यू आर गोइंग टू पाचगणी to see that tableland. Tableland, it is nothing but that flat surface of earth. Continuous flat surface of earth. That is nothing but tableland. That is known as plateau. A plateau is the flat area of the search space in which all the neighbor states of the current state contains the same value. Because of this, algorithm does not find any best direction to move. A hill climbing search might be lost in the plateau area. Then next is ridge. This lower surface is known as ridge. A ridge is a special form of local maximum. It has an area which is higher than its surrounding areas, but itself has a slope and cannot be reached
in a single move. Therefore, this is known as ridge or ditch. When you will climb, again you will come down here, and wherever you will reach at the down, that point is known as ridge. These top places are also known as ridges. Now we will see the two videos, then you will understand what is it by hill climbing. हिल क्लाइंबिंग डिस्कस करने से पहले इसका रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं. रियल टाइम मींस जनरल एग्जांपल ले लेते हैं कि आप सपोज कोई हिल चढ़ रहे हो तो उसमें सिंपली क्या करोगे, जब तक आप टॉप पे नहीं पहुंच जाओगे तब तक चलते रहोगे. सपोज आपकी पोजीशन करंटली यहाँ पे है, तो आपको अगर यहाँ पे अगर न्यू पोजीशन मिल रही है तो आप करंटली अपनी पोजीशन चेंज करोगे जब तक आप यहाँ पे टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते. सपोज हमारा एल्गोरिथम यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करता है और इसके पास अगर दूसरा एक बेस्ट पॉइंट है तो वो क्या करेगा, ये जो स्टेट है उसको चेंज करके दूसरा कर देगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसके पास बेस्ट स्टेट नहीं आता है. तो लेट अस सी एल्गोरिथम वाइज मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो एल्गोरिथम में क्या है कि फर्स्ट इज इवैल्यूएट द इनिशियल स्टेट, इफ इट इज अ गोल स्टेट देन रिटर्न क्वाइट. गोल स्टेट का मतलब क्या होता है? गोल स्टेट दैट मींस द पीक वैल्यू. पीक वैल्यू यानी ऐसी वैल्यू इसके बाद कोई भी उससे अच्छी वैल्यू नहीं है. यानी कि अगर आप ये पीक वैल्यू पे पहुंच गए हो तो उसके बाद सारी वैल्यू पीक वैल्यू से कम होगी. ओके, तो उसको हम बोलेंगे गोल स्टेट. अगर हम स्टार्ट करते हैं और यही हमारा गोल स्टेट है तो हमें क्विट कर देना है, वरना हमें क्या करना है, लूप अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड. यानी कि जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक हमें उसे ढूंढना है. किस तरह से ढूंढेंगे? ऑपरेटर्स का यूज करेंगे. ऑपरेटर्स यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या आएंगे, तो हम जो पर्टिकुलर नोड लेके जो काम करेंगे उसको हम ऑपरेटर्स कह सकते हैं. तो ये सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक ये चलेगा एल्गोरिथम, या फिर जब तक हमारे पास ऑपरेटर्स है तब तक. नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट एंड अप्लाई द न्यू ऑपरेटर. अगर एक ऑपरेटर से काम नहीं होता है तो नेक्स्ट ऑपरेटर अप्लाई करो एंड मूव फॉरवर्ड. एंड द फोर्थ स्टेप, यानी कि अब अगर आप करंट स्टेट पे पहुंच गए हो, ये पर्टिकुलर एक स्टेट पे पहुंच गए हो, इसको इवैल्यूएट किस तरह से करोगे? तो इफ इट इज अ गोल स्टेट देन क्विट. अगर ये हमारा गोल स्टेट है तो यहीं पे हमें स्टॉप कर देना है, क्विट कर देना है. नेक्स्ट वन इज इफ इट इज अ बेटर देन द करंट स्टेट देन मेक इट अ न्यू करंट स्टेट. तो जैसा कि मैंने कहा ये आपका करंट स्टेट है. लेट अस सपोज ये आपका करंट स्टेट. अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेट पे जाते हैं. लेट अस सपोज ये स्टेट. तो अगर ये स्टेट से बेटर है, यानी कि अगर हम इसको 1 दे दें और इसको 2, तो अगर सेकंड नंबर का स्टेट 1 नंबर के स्टेट से बेटर है तो हमें इसको करंट स्टेट बनाना होगा एंड आगे मूव करना होगा. नेक्स्ट इज इफ इट इज नॉट द बेटर देन करंट स्टेट देन गो टू स्टेप 2. यानी कि अगर ये करंट स्टेट से बेटर नहीं है तो हमें कहाँ जाना है? स्टेप 2 पे जाना है. वहां पे ये एल्गोरिथम वापस से रन होगा. ओके, सो ये जो हिल साइफर है इसमें हम जो पॉइंट पे पहुंचते हैं, ये जो पॉइंट उसको हम बोलेंगे मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. यानी बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं, यू कैन स्पीक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब ये एल्गोरिथम में काफी सारे लिमिटेशंस आते हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन एवरी लिमिटेशन. अब हिल साइफर के जो लिमिटेशंस है वो डिस्कस करेंगे. तो हिल साइफर के टोटल 3 लिमिटेशंस है. फर्स्ट इज लोकल मैक्सिमम. लोकल मैक्सिमम दैट मींस कि यहाँ पे सपोज आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, लेट अस सपोज ये पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो एल्गोरिथम को क्या लगेगा कि यही हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा डाउन जाने के बाद हमें और एक बड़ा पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम. ओके, और ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम. नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे लिमिटेशन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास लोकल मैक्सिमा से भी बेस्ट वैल्यू है यहाँ पे. ओके, तो ये
फर्स्ट हमारा जो लिमिटेशन है वो है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज प्लेट्यू। प्लेट्यू दैट मींस कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारे सक्सेसर्स की वैल्यू सेम हो जाती है। अब ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि कुछ पॉइंट के बाद वहां से हायर पॉइंट मिल रहा है लेकिन अल्गोरिदम को कुछ टाइम तक सेम वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे अल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है प्लेट्यू। थर्ड वन इज रिच। रिच मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे सारे सक्सेसर्स की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि सारे सक्सेसर्स को एक ही हाई पॉइंट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं रिच। सो दिस वाज द सिंपल वीडियो ऑन हिल क्लाइंबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Okay. Now we'll see next video. हेलो दोस्तों, गेट्स मैसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, और इस वीडियो में हम इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ लोकल सर्च एल्गोरिथम। मतलब इसको अपनी लोकल डोमेन की नॉलेज है, पूरी ग्लोबल डोमेन की, पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम की कोई भी नॉलेज इसको नहीं होती। दूसरा, ग्रीडी अप्रोच। जब तक इसको बेस्ट मूव मिलती है तब तक ये चलता जा रहा है, बेस्ट मूव मिलनी बंद हो गई तो ये वहां पे स्टॉप कर जाएगा। थर्ड, नो बैक ट्रैकिंग। मतलब अगर इसको बेस्ट मूव नहीं मिल रही तो ये बैक ट्रैक नहीं कर सकता। इसको आगे जाके एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है, जस्ट वी आर स्टार्टिंग विद द इनिशियल स्टेट। कोई भी प्रॉब्लम हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू ऑपरेटर मतलब न्यू नोड फाइंड करते जा रहे हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल से देखें तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है, उसके आगे मेरे पास लेट से 3 स्टेट्स है, मतलब 3 इसकी ब्रांचेस है। अब इन 3 ब्रांचेस में से इसने जो है वो बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू, बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक, हमने क्या किया, तीनों में से बेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें बीम विड्थ क्या होती है, 1। बीम विड्थ 1 का मतलब है कि इन तीनों में से जो भी बेस्ट है ये सिर्फ उसको आगे एक्सप्लोर करेगा, बाकियों को भूल जाएगा। मतलब इनको ना तो हम मेमोरी में सेव कर रहे हैं, इनमें से बेस्ट ये था तो आगे हम इसको एक्सप्लोर किया। अब लेट्स से ये 3 प्रॉब्लम आगे, मतलब ये 3 आगे जाके ब्रांचेस हैं। अब इन तीनों में से लेट्स से अगर ये बेस्ट है तो इसको आगे एक्सप्लोर करेगा, इसको आप भूल जाओ। तो ये सिंपल सा फंडा है किसका, सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का। तो ये लाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। My job is to make college easy because students have a lot of fun. If the state is better than the current state, then it is a new current state. मतलब आप चलते जा रहे हो, जब तक आपको बेटर स्टेट मिलती जा रही है तब तक आप आगे चलते जाओ। बेटर स्टेट मिलनी बंद हो गई तो आप वहां से आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। ये सिंपल से तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप जो है सिंपल पहाड़ चढ़ते जा रहे हो लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड। अब ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हो। तो उसमें हमारे पास बेस्ट मूव क्या है कि जब तक आप ऊंचाई पे जाते जा रहे हो, जब तक आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो तब तक तो आप चलते जाओगे। अगर आपको बीच में कहीं पे लगे कि यार आपका पैर नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे आप नहीं जाओगे। तो जब तक आपका पैर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है आप बेस्ट मूव जो है वो फॉलो करते रहो। एक पॉइंट पे जाके आपका जो है वो पैर स्टेबल हो जाएगा, मतलब ना तो वहां पे ऊंचाई ना वहां पे ऊपर की तरफ आप जा सकते हो। तो वहां पे जाके आप क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। तो वो आपके लिए क्या बन गया, बेस्ट पाथ बन गया। तो यहाँ पे आपने इस पाथ तक गए तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अचीव कर ली। ऑल्दो यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये स्टार्टिंग है और ये गोल स्टेट है। अब स्टार्टिंग स्टेट से मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, मैं इन तीनों में से कोई भी आगे मूव कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे को क्या चेक करना है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अब मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक की तो इस स्टेट की ह्यूरिस्टिक है 4, इसकी 5, इसकी 6। तो मैंने करना क्या है, मैंने एक चूज करनी है बेस्ट। मतलब इन तीनों में से करंट स्टेट कौन सी है मेरी, ये।
तो करंट स्टेट से बेटर कौन सी है, ये लाइन, सिर्फ आपको बस ये लाइन पे फोकस करना है। इफ द स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट, तो देखो इन तीनों में से बेटर कौन सी है, ये बेटर है नहीं, ये तो बराबर वैल्यू है, बेटर है नहीं, ये तो और ज्यादा बढ़ गई ह्यूरिस्टिक वैल्यू, हमें कम चाहिए, मतलब कॉस्ट हमें कम से कम कॉस्ट में हमने गोल स्टेट पे पहुंचना है, तो बेटर स्टेट कौन सी है, ये वाली, तो ये कहां मूव करेगा, इस तरफ, तो इसको ये भूल जाएगा ना, तो हम इसको मेमोरी में सेव कर रहे हैं कुछ नहीं। अब हम आगे जाएंगे, अब इसमें से आगे हम फिर सर्च करेंगे, तो इस तरीके से जो है वो मूव करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है हिल क्लाइंबिंग में, प्रॉब्लम्स आ रही है लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ब्लाइंड फोल्डेड जो है वो, क्योंकि आपको लोकल डोमेन की नॉलेज है, तो ब्लाइंड फोल्डेड अगर आप नहीं होते तब तो आपको पूरे डोमेन की नॉलेज हो जाएगी, कि आपको पता लगेगा कि अच्छा ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे चढ़ना आपको पूरा दिखेगा भी। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा व्यू नहीं दिख रहा, क्योंकि आप लोकल सर्च पे काम कर रहे हो। तो लोकल डोमेन में क्या है, आप ब्लाइंड फोल्डेड चढ़ते जा रहे हो, पहाड़ चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, आपकी बेस्ट मूव क्या है, बेस्ट मूव है कि जब तक आपका पैर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है वो आपकी बेस्ट मूव है। तो एक पॉइंट पे जाके स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाओगे, तो वहां पे जाके आपका ना तो पैर ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, तब आपको क्या लगेगा कि मैंने गोल स्टेट अचीव कर ली, मतलब मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। तो जैसे ही आपने पट्टी उतारी तो आपको लगेगा वाओ मैंने तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कैन बी व्हाट, कि देयर इज अनदर हिल, देयर इज अनदर हिल जिसकी ऊंचाई जो है वो, जिसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है। लेकिन अब आप इसको नहीं अचीव कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तब तक काम करता है जब तक आपको करंट स्टेट से बेटर स्टेट मिलती है। तो आपको ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अचीव हो गई, तो अब आप मिनिमम की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए आपको पहले मिनिमम पे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे ये नहीं जाएगा। तो ऑल्दो ये हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व कर ली है, या 8 मिनट प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कई प्रॉब्लम्स में अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम है। हम सारे स्टेट्स को मेमोरी में नहीं रख रहे, हम सिर्फ जो बेस्ट स्टेट है उसको मेमोरी में रख रहे हैं, बाकियों को हटा रहे हैं। तो जब तक बेस्ट आपको मिलता जा रहा है तब तक तो गुड है। तो यानी ये पूरी वैल्यू डिपेंड करती है ह्यूरिस्टिक के ऊपर। अगर आपको ह्यूरिस्टिक अच्छा मिलता जा रहा है तब तो आप मूव करते जाओ, लेकिन यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मतलब आपने मैक्सिमम अचीव कर लिया, लेकिन क्या वो ग्लोबली मैक्सिमम है, नहीं, ग्लोबली मैक्सिमम तो ये है, तो ये आपका अचीव नहीं होगा। तो ये फंडा है किसका, ये आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे भी आपको यहाँ पे दिखाई है। ये प्रॉब्लम जो है ऑल्दो ये थ्योरेटिकल ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या है, कि आपने 5 स्टेट से स्टार्ट किया, आपकी ह्यूरिस्टिक है 5, करंट स्टेट में वैल्यू कितनी है 5, तो आपको इससे बढ़िया वैल्यू चाहिए, मतलब आप ऑब्वियसली बढ़िया वैल्यू का मतलब है कम ह्यूरिस्टिक में, कम कॉस्ट में पहुंचना चाहोगे, तो आप 4, 5, 6 में से किसको चूज करोगे, ऑब्वियसली 4 वाली वैल्यू को चूज करोगे। तो आपने इसको हटा दिया, मेमोरी में कोई सेव नहीं किया, इसको भी मेमोरी में सेव नहीं करते, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बेटर होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक बेस्ट मूव की तरफ चलते जा रहे हैं। अब लेट्स से इसको आगे आपने एक्सप्लोर किया, जब इस स्टेट को एक्सप्लोर किया, अब करंट स्टेट आपकी 4, तो करंट स्टेट इस पे जब आपने नेक्स्ट स्टेट को एक्सप्लोर किया तो अरे ये तो 5 पे लेके जा रहा है, मतलब ह्यूरिस्टिक आपकी बढ़ गई। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एल्गोरिथम कह रहा है इफ इट इज बेटर देन द करंट स्टेट देन इट इज अ न्यू करंट स्टेट। तो यहाँ पे न्यू करंट स्टेट तो बनेगी नहीं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू बढ़ गई, तो ये यहीं पे क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम। देन प्लेट्यू या जिसको बोलते हैं फ्लैट मैक्सिमम, ये वर्ड्स एक्चुअल में ना हिल क्लाइंबिंग के ऊपर ही है। हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या है कि जब आप चढ़ते जा रहे हो तो एक फ्लैट पॉइंट आपको मिल गया। फ्लैट पॉइंट का मतलब है कि जहां पे आपके जो नेबर्स हैं, मतलब जितने भी आपके नेबर्स हैं, उन सारे नेबर्स की वैल्यू जो है, लेट्स से सबकी वैल्यू सेम है, 5 5 5। अब इस पॉइंट पे आप किसको चूज करोगे, जब सारे ही आपको सेम ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रहे हैं, तो आप उनमें से किसको चूज करोगे। तो अब भी ये क्या है, आगे आंसर नहीं देता, मतलब यहाँ पे भी ये क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसकी, प्लेट्यू या फ्लैट मैक्सिमम प्रॉब्लम इन द हिल क्लाइंबिंग। और थर्ड है रिज। रिज का मतलब क्या है, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम में 3D डायग्राम में क्लियरली दिखेगा, लेट्स से कि आप एक डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हो, मतलब यहाँ पे
आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, जब तक आपको बेस्ट व्यू मिलती है। और बेस्ट व्यू मतलब क्या है कि जब तक आपका पैर जो है वो आगे की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, वो आपकी बेस्ट है। इसका मतलब आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, एक पॉइंट पे जाके आप पहुंच गए। तो यहाँ पे जाके आपने अपनी पट्टी उतार दी, मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब इसके बाद तो ऑब्वियसली आपकी मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होगी, तो वहां पे तो आप जाओगे नहीं। लेकिन रिज का मतलब क्या है? रिज मतलब ये जो ए और बी है ना, ये बी ए से भी ऊपर है। अब ये बी जो है वो ए से ऊपर है, लेकिन अभी यहाँ पे पहुंच के ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एक डायरेक्शन में ही मूव करता जा रहा है। तो ऑल्दो यहाँ पे बी पॉइंट इससे ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। ऑल्दो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लोकल मैक्सिमम ओनली। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम, दिस इज एल्गोरिथम। ये आपको मैंने एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर कर दिया कि लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम होती क्या है और कैसे हम एक्चुअल में इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो जो हमने बीम सर्च डिस्कस किया, बीम सर्च में जो बीटा की वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 मल्टीपल हो सकती है, लेकिन हिल क्लाइंबिंग में बीटा की वैल्यू 1, मतलब आपको सिर्फ एक बेस्ट रूट पे चलना है, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को आप सिंपली स्किप करते जाओ। तो लेट्स से एक पॉइंट पे जाके अब आप स्टॉप कर जाओगे। अब आपको पता है कि यार ये मेरे को आगे बेस्ट लेके नहीं जा रहा, तो मैं पीछे जाऊं, लेकिन पीछे आप जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। थैंक यू। Okay. Now we have seen hill climbing algorithm. Now branch and bound technique. Branch and bound is an algorithm technique which finds the optimal solution by keeping the best solution found so far. If partial solution can't improve on the best, it is abandoned. By this method, the number of nodes which are explored can also be reduced. It looks for the best solution for a given problem in the entire space of the solution. The bounds in the function to be optimized are merged with the value of the latest best solution. It allows the algorithm to find parts of the solution space completely. It also deals with the optimization problems over a search that can be represented as the leaves of the search tree. The purpose of a branch and bound search is to maintain the lowest cost path to a target. Once a solution is found, it can keep improving the solution. Therefore, we will see this method. This is one more problem-solving strategy, a method by which we can solve a problem. This is similar to backtracking in the sense that it also uses a state space tree for solving the problem. Solution is represented like a state space tree. But it is useful for solving optimization problem and only minimization problem, not maximization problem. Anyway, we can convert a maximization problem into minimization and we can solve it. So let me show you how it works. See, I have taken one simple example here, that is job sequencing with deadlines problem. Now, how the state space tree is generated for it. There are two methods of generating a tree. That depends how you want the solution. See, suppose I say that I am doing job 1 and job 4. This is my solution. Then the solution can be represented as subset of that jobs. This is one method of giving a solution. And second method of representing a solution is first job is done, second and third job is not done, fourth job is done. So this is variable size solution and fixed size solution. See, as per this example, I got subset as 2 jobs. Sometime I may get 3 jobs, or some problem I may get just 1 job. So this is variable size. But this type of solution, if you write a solution like this, then it will be fixed size. Always will be representing zeros or ones equal to the number of jobs. Right? There are two methods of solving this one or drawing a state space tree. I will follow this method first, that is subset method. Then that is a variable size solution. So for that, I can draw a state space tree and I'll say that
I am considering first job. Then in backtracking, we will consider the next level. But here in branch and bound, we will also consider second job, and then third job, and then fourth job. So it is like depth first search. We don't go depth wise. We don't follow depth first search. We follow depth first search for exploring the solutions to the problem. So the difference between backtracking and branch and bound is backtracking was depth first search, and the branch and bound is depth first search. Now this one level is completed. See, I have considered all the jobs one by one. Now, once I take first job, then what are the solutions? Job 2 I can take, or job 3 I can take, then job 4 I can take. Right? First job is already taken, then I can take second job or third job or fourth job. So if I follow one of the route, it says that I am doing first job and fourth job. I am not taking second and third job. That is the thing. Now, which is the next? And these nodes are 6, 7, 8. Now, next, which node I should expand? Shall I expand this one or this one? So next is this one. I am doing second job, considering second job. But what about the next one? I will be doing third job or fourth job. See, first job already we have discarded. We are not considering it. We are not taking it. Then third job and fourth job. Then here, only fourth job. 11th job. Now, which node I should expand next? This node I should expand. So third job or fourth job. And if I expand this, I'll have only fourth job. Right? Then this one is already fourth job. Here I can consider fourth job, 16. Then all are reaching till 4. And this is the last one, 7. Fourth job. So this is a state space tree for the solution. If you're looking like this. And if I consider any node, this node says that I am considering second job and fourth job. This node says that I am considering third job and fourth job. So this is one way of generating a tree. So branch and bond, we generate a tree like this. This is one method. Then I'll show you the second method of this. Let us look at second method for the same variable size solution. See, first node is generated and we consider first job, job 1, and then job 2. Now one thing, while generating this, I'll put these nodes in the stack. Second node generated, third node generated. Then I'll consider job 3, this is the fourth node in the stack. Then I'll consider job 4. So this is the fifth node. Now, which node I should expand next? I should expand fifth node. How? The nodes I am keeping them inside the stack. So pop out this one and expand. See, already this is on the last job. There is no expansion possible further. So pop out next node and expand this one. So which job? Job 4. Third is over, fourth is right? 4. So node 6. Now, which node I should explore next? That's 6th node. So can it be explored further? No, this is the last job. Okay, pop out the next node and explore it. See, this is second job. So what are possible? Third job, right? Or fourth job. This is node 7 and 8. Push both of them in the stack. Now, which node I should explore? 8th node. This is already on fourth job. It cannot be expanded further. Then 7th node. Yeah, I can expand it. Job 4. This is 9th node. 9th node. Which node I should explore next? So take it out from the stack. 9. It cannot be explored further. So take out 2 and explore it. So exploration, first job is done, second job or third job or fourth job. So you want to be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question. Read the prompt. So the node numbers are 10, 11, and 12, and in the same order they are pushed into the stack. So this is another method. So what is the difference in the previous one and this one? In the previous one, we were using queue for next node exploration, and now we are using stack for next node exploration. So if you are using queue, then it is called as FIFO branch and bound, and if you are using stack, then it is called as LIFO branch and bound. So you can use any one,
And you have to follow breadth first search only. What is breadth first search here? Once you pick up a node for exploration, you should explore all the possible nodes. Then only you should select the next node. That's what breadth first search is. So, but next node from where you select from queue also, stack also. And there is one more method, that is least cost branch and bound. So this is LC branch and bound. There is one more method. I'll show you that one. Now let us look at this method, least cost branch and bound method. So for this problem, I will generate a tree, again state-based tree. Let us start with first node. For this time, I will explain you one more new thing. That is, for every node, we will calculate the cost. So what is cost? Depending on the problem, we define a cost function. And using that function, we find out the cost of each node. And this we do for all three methods, whether you are using C4 or D4, F4, then only we can solve a minimization problem. Let us assume the cost of this one is 8. Now let us consider the jobs. First job, right? And the cost of this node is, let us say, 25. Just randomly, I'm writing some number. Then, second job. The cost of this is 12. And this one, third job. The cost of this one is 19. And next, fourth job, node 5. Let us say cost of this is 30. Now, which node I should explore next? The node with the minimum cost I should explore next. Least cost. That's what it is. Least cost branch and bound. So here of least cost, this one. So I should explore this one. Now let us look back again. C4 method, which one we select for exploration? This one will expand. LE4, we try to expand this one. Least cost, out of this, whichever is having least cost, we'll try that. So we'll expand this one. So job 2 is there. So this is job 3 and job 4. Suppose here the cost is 8 and here the cost is 7. Now which one we should explore? This one. But this is the last node, second job, fourth job. So this is the solution. So like this, instead of generating an entire tree, we always pick up the nodes with minimum cost, that is least cost, and try to explore that one so that quickly we can reach the solution. This is the idea of LC branch and bound, and this is much faster than using C4 and D4. We can use any of these methods, but in each method, we write out the cost of each node and find the solution. In the coming videos, I'll be solving few problems using branch and bound. The topic is branch and bound. This is okay. This is nothing but branch and bound technique. The purpose of branch and bound search is to maintain lowest cost path to a target. Once a solution is found, it can keep improving the solution. Now, the last method is best first search. We'll see, and this problem will be completed. Best first search is based on expanding the best partial path from current node to goal node. Here motion is from the best open node so far in the partially developed tree. If the state has been generated earlier and new path is better than the previous one, then change the parent and update the cost. Best first search is an instance of graph search algorithm in which a node is selected for expansion based on evaluation function, Fn, known as heuristic function. Traditionally, the node which is the lowest evaluation is selected for the expansion because the evaluation measures distance to the goal. Best first search can be implemented within general search framework via a priority queue, a data structure that will maintain the fringe in ascending order of F values. This search algorithm serves as combination of depth first and breadth first search algorithm. Best first search algorithm is often referred as greedy algorithm. This is because they quickly attack the most desirable path as soon as its heuristic weight becomes the most desirable. Now this is the best first search. In BFS and DFS, when we are at a node
we can consider any of the adjacent as next node. So both BFS and DFS blindly explore paths without considering any cost function. The idea of best first search is to use an evaluation function to decide which adjacent is most promising and then explore. Best first search falls under the category of heuristic search or informed search. We use a priority queue to store costs of nodes, so the implementation is a variation of BFS. We just need to change queue to priority queue. Therefore, this is the algorithm of best first search. Now, we'll see this video, then you will understand it. Let us consider the example. We start from yes. Here yes is there. And search for goal I. This is the goal I is there. Using given cost and best first search. Now PQ initially. PQ initially contains yes. Yes, this is the PQ contains yes initially. We remove yes from and process unvisited neighbors of yes to PQ. PQ now contains ACB. ACB. C is put before B because C has lesser cost. C has lesser cost. See that. A has cost 3. C has cost 5. B has cost 6. Therefore, ACB. We remove A from PQ and process unvisited neighbors of A to PQ. Now we have to remove A from PQ. Now PQ now contains CBED. CBED. This A we have to remove. We remove C from PQ. Now we have to remove series from PQ and process unvisited neighbors of C to PQ. Therefore, PQ contains now B, H, ED. We remove B from PQ and process unvisited neighbors of B to PQ. Now we have to remove B. Therefore, what will be the here? H, ED, FG. We remove H from PQ. We have to remove H from PQ. Since our goal I is neighbor of H, we return. Therefore, this is our goal I. Therefore, what is analysis? The worst case time complexity of best first search is O. That is n into log of n, where n is number of nodes. In worst case, we may have to visit all nodes before we reach goal. Note that priority queue is implemented using minimum or maximum heap, and insert and remove operations take time. Performance of the algorithm depends on how well the cost or evaluation function is designed. Therefore, this is the one video we'll see and then we'll stop. I have taken your attendance. Please wait for 5 minutes. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था DFS, BFS और दोनों के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस किया। लेकिन DFS में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो लेवल वाइज सर्च करता था, लेकिन DFS में क्या प्रॉब्लम थी कि वो डेप्थ तक जाता था। और दोनों का अगर हम कंबाइन करके यूज करें इन द एफिशिएंट वे तो उसको हम बोलेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च। ओके, और यहाँ पे DFS में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो इनफाइनाइट लूप तक चला जाता था और BFS कुछ ज्यादा ही मेमोरी ऑक्यूपाई करता था, यानी कि जहाँ पे जाना नहीं वहां पे भी वो सर्च करता था। तो दोनों के फीचर्स भी थे और डीमेरिट्स भी थे, तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे और एक नया लाइक सर्च एल्गोरिथम जिसको कह सकते हैं BFS को अप्लाई करेंगे। तो BFS एक्चुअली क्या है? तो BFS प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से चलता है और उसमें हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू का यूज करेंगे। ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड ह्यूरिस्टिक सर्च क्या है वो आपको पता है। देन लेट अस स्टार्ट। किस तरह से बेस्ट फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे किसी भी नोड्स पे और किसी भी सर्च जहां पे भी हमें सर्च अप्लाई करनी है। ओके, नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होगा कि बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमारे पास दो लिस्ट होगी, एक है क्लोज्ड लिस्ट और एक है ओपन लिस्ट। अब दोनों लिस्ट का मतलब क्या होता है
कि ओपन लिस्ट का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा पूरा सर्च एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। ओपन लिस्ट क्या होगा कि सपोज हमारे पास रूट नोड है ए, ओके, तो ये ए जो है वो हमारा रूट नोड है, तो अब इसके जो चाइल्ड्स होंगे वो एक्सपांड होंगे बी सी एंड डी, ओके। अब सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू पहले से ही होगी, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 3, 5 एंड 1। गोल हमें नहीं पता, बट ह्यूरिस्टिक वैल्यू यानी कि गोल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, दैट मींस ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो दी गई है, ओके। अब एल्गोरिथम क्या करेगा, ए को एक्सपांड किया, दैट मींस बी सी और डी आया, तो बी सी और डी को हम डालेंगे ओपन लिस्ट में, ओके। अब यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च किस तरह से काम करता है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च सबसे कम ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वहां पे पहले अप्लाई करेगा, यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च गारंटी लेता है कि हमें प्रॉमिसिंग नोड, यानी कि जहां पे हमें बेस्ट रास्ता मिलेगा वही हमें देगा। बेस्ट रास्ता हमें कैसे मिलेगा, जहां पे हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है। ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे 1, दैट मींस हम सिलेक्ट करेंगे डी को। अब ये डी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा कि ओपन के अंदर होगा ए, बी और सी और डी, लेकिन अब जैसे ही हम डी को सिलेक्ट करते हैं तो डी को एक्सपांड किया जाएगा और डी को यहाँ से रिमूव करके क्लोज लिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्लोज लिस्ट का मतलब क्या है कि जहां पे हमने इवेल्युएट कर दिया है डी को, तो हम वापस से नहीं देखेंगे। दैट मींस ये भी एक सबसे बड़ा फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें बार बार नहीं देखना पड़े, इसलिए हम इसको क्लोज लिस्ट में डाल देंगे, ओके। अब हमने डी को सिलेक्ट किया है, तो डी के चाइल्ड्स एक्सपांड होंगे ई एंड एफ। अब ई और एफ की खुद की एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू मान लेते हैं 4 और 6, ओके। अब क्या होगा कि जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो डी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो दूसरों से ज्यादा है, दैट मींस यहाँ पे 3 है दैट, और यहाँ पे 4 और 6 ज्यादा है, तो क्या होगा कि एल्गोरिथम अब यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, वो क्या करेगा 3 को एक्सपांड करेगा, 3 को यानी कि नोड बी को एक्सपांड करेगा। नोड बी को एक्सपांड करते ही यानी कि क्या होगा कि बी को हम किस में डाल देंगे, क्लोज लिस्ट में डाल देंगे और ओपन लिस्ट में से उसको निकाल देंगे। अब बी के नोड्स एक्सपांड होंगे, तो बी के नोड्स हम मान लेते हैं जी एंड एच, और जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 7 और यहाँ पे अगेन 5 ले लेते हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम हो सकती है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करेगा कि अगर ये पहले से बेटर है या नहीं, अगर पहले से बेटर नहीं है और इसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, दैट मींस मैं बात कर रहा हूँ ई की, तो वो कहाँ जाएगा, ई को एक्सपांड करेगा, दैट मींस। और एक बात, जब भी हम न्यू नोड को एक्सपांड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, तो एक पाथ बनता जाएगा। पाथ किस तरह से बनेगा, दैट मींस ए को मैंने सिलेक्ट किया, देन मैंने डी को सिलेक्ट किया, अब मैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू से ई को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे ई का पाथ बनेगा, ओके। और मान लीजिए कि हमारे पास इसके बाद गोल नोड है आई एंड जे, और ये जे हमारा गोल नोड है, तो हमारा पाथ किस तरह से बनेगा, ए डी ई एच, सॉरी ए डी ई जे, ओके। अब बात है कि ये एल्गोरिथम इतना एफिशिएंटली काम कर रहा है कि बीएफएस और डीएफएस दोनों के फीचर्स को मर्ज करके यूज करता है, इसलिए इसको कहा जाता है बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसको हम बीएफएस नहीं बोलेंगे, रीजन इज अगर हम बीएफएस बोलते तो बीएफएस से हम ब्रेड फर्स्ट सर्च में पहुंच जाते हैं, तो इसको हम सिर्फ बेस्ट फर्स्ट सर्च ही बोलेंगे। और इसी यह एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक फंक्शन पे डिपेंड करता है, और इसके बाद का जो एल्गोरिथम है वो है ए स्ट्रिक एल्गोरिथम। ए स्ट्रिक सबसे बेस्ट एल्गोरिथम, यानी कि बेस्ट फर्स्ट सर्च का सबसे जो एडवांस एल्गोरिथम है, सर्च एल्गोरिथम, वो है ए स्ट्रिक एल्गोरिथम। तो इस वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे ए स्ट्रिक एल्गोरिथम with the proper example. So thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel. Okay, thank you very much. Now we will stop here. Thank you. I have taken your attendance.